Okay, so let us start with kinetic theory of gases. We'll try to solve as many questions as possible today. So, first question: air is filled at 60° in a vessel of open mouth. The vessel is heated to a temperature T so that 1/4 part of the air escapes. Assuming the volume to be constant, the value of T is. देखो, by the way, you should know यहाँ पे in such cases आपको क्या कांस्टेंट दिया है पहले वो समझ लो. आपको बोला है assuming the volume is constant, आपके पास air है at 60° and you are heating it so that 1/4 of air escapes, right? So you have to start solving this question from something really basics. तो कैसे solve करेंगे इसको? How to solve this? PV is equal to nRT. Okay. PV is equal to mass upon molecular weight RT. Correct? Good. Then, well, वॉल्यूम कांस्टेंट बोला है, प्रेशर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो प्रेशर भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा. They have told nothing about pressure. तो यहाँ पे P कांस्टेंट, V कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट. तो you will have basically PV m0 upon R equal to mt. So this is all constant. So therefore you will have mt equal to constant. अगर ऐसा है तो m1 t1 equal to m2 t2, right? आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है the value of final temperature T2 is m1 by m2 into t1 into t1. तो ऐसा मिलेगा. Now क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ोगे, 1/4 एयर एस्केप्स, 1/4 एस्केप्स, तो बचा कितना? 3/4. m1 में से 1/4 एस्केप हो गया तो कितना बचेगा? 3/4. तो m2 इज 3/4 ऑफ m1. तो आपको यहां से मिल जाएगा m1 by m2 इज इक्वल टू 4/3. 4/3 यहां डालोगे तो t2 इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ t1. t1 कितना? 60 डिग्री. डिग्री से मत करना, केल्विन. So 60 degrees is how much? 333. 273 plus 60. 111, that is 444. तो 444 आपको मिलेगा टेम्परेचर इन केल्विन. 444 केल्विन. केल्विन 444 माइनस 273, क्योंकि डिग्रीज में चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर डी. Therefore, you will have T2 equal to 444 minus 273, that is 171 degree Celsius. तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. क्वेश्चन ऐसा है that you are heating a gas from 60°. The gas is in a vessel of open mouth. It is exposed to environment surrounding को expose है. तो जैसे ही heat करोगे तो some part will basically escape. तो PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू m0 RT. देखो टेम्परेचर और मास का रिलेशन चाहिए. वॉल्यूम कांस्टेंट बोला ही है, प्रेशर नहीं बोला तो मानना पड़ेगा. वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेशर, इनिशियल भी नहीं और फाइनल भी नहीं. एंड बाय द वे, ओपन माउथ मतलब ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब दोनों ही केस में प्रेशर विल बी कांस्टेंट, राइट? तो mt इक्वल टू कांस्टेंट, m1 t1 इक्वल टू m2 t2 एंड सॉल्व दिस. करेक्ट. 1/4 एस्केप हुआ है तो 3/4 बचेगा. तो फाइनल मास इज 3/4 ऑफ m1. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T ऑफ अ गैस इन जार A एंड अदर गैस इन जार B. प्रेशर इज 2P, वॉल्यूम इज V/4, टेम्परेचर इज 2T. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन जार A टू दैट ऑफ जार B. तो हमारे पास दो गैस है, एक A जार में, एक B जार में. A जार में जो गैस है that is at pressure P, volume V, temperature T, and here you have 2P, V/4 and 2T. This is what you have. तो आपको पूछा है what is the ratio of number of molecules. So first of all, you should know PV is equal to nRT.
You should know PV is equal to number of molecules upon Avogadro number RT. So you should know that यहाँ पे n number of molecules, not Avogadro number. So number of molecules is equal to PV upon RT into NA, right? Clear? तो by the way क्या क्या कांस्टेंट है? Na कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, therefore number of molecules is proportional to PV by T. Therefore number of molecules in A to that of B is PA by PB, BA by BB, and you will have TA by TB, right? Correct? Clear? Good. PA is P by 2P, VA is V, this is V by 4, TB by TA, 2T by T, 2T by T, cancel, 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 cancel and cancel, 1 upon 4 मतलब 4, तो 4:1, ऑप्शन नंबर D. तो ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ रिलेशन बिटवीन a known parameter n and what is known to you PV T. तो n is proportional to PV by T, right? ऐसा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two identical glass bulbs are interconnected by a thin glass tube. A gas is filled in this bulb at normal temperature pressure NTP. If one bulb is placed in ice and another is placed in a hot bath, then the pressure of the gas becomes 1.5 times the temperature of the hot bath will be. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो. आपके पास दो बल्ब्स है. You have two bulbs, something like this. Okay. आपने इन दोनों बल्ब को इंटरकनेक्ट किया विद अ थिन ग्लास ट्यूब. So you are connecting these with a thin glass tube. Okay, right? A gas is filled in this bulb at NTP. तो पहले जब इसमें आपने गैस फिल किया था तब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे किया था. नॉर्मल टेम्परेचर इज 273 केल्विन. नॉर्मल प्रेशर we'll see. नॉर्मल प्रेशर कैंसिल आउट होगा वैसे भी, तो डोंट वरी अबाउट दैट. एनीवेज, आगे. इफ वन बल्ब इज प्लेस्ड इन आइस, तो नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज आप इन दोनों में से एक बल्ब को आइस में रख रहे हो. यू आर प्लेसिंग वन ऑफ दीज इन आइस और एक को आपने हॉट बाथ में रखा. सो यू हैव अ हॉट बाथ हियर, you have ice over here, right? Good. यहां तक क्लियर. फाइनल टेम्परेचर आपको पूछा है हॉट बाथ का. मैं इसको वेसल 1, इसको वेसल 2 बोलता हूं. तो फाइनल टेम्परेचर आपको पूछा है वेसल 2, मतलब सेकेंड केस में हॉट बाथ का टेम्परेचर क्या है. सबसे पहले you have filled up 2 bulbs, then you are joining the 2 bulbs. फिर आप एक को हॉट बाथ में रखो, दोनों को हॉट बाथ में रखो, एक को आइस में रखो, दोनों को आइस में रखो. नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन कांस्टेंट. तो आप बोलोगे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स. इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज n1 इन द फर्स्ट, n2 इन द सेकेंड, और यहां पे आएगा n1 डैश n2 डैश. नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे. आई एग्री, राइट? बाय द वे, डू यू नो PV is equal to nRT? So you know n is equal to PV by RT. तो n1 is P1 V1 by RT. T1 बोलोगे तो भी T होगा क्योंकि दोनों बल्ब को आपने NTP पे फिल किया है. तो जितना टेम्परेचर पहले में था उतना ही दूसरे में था जब आपने फिल किया था. करेक्ट? देन
दिस इज इक्वल टू प्लस P2 V2 by R T2 मतलब वापस से RT, so this will be equal to, now जब आपने पहले को फिल किया या दूसरे को फिल किया, राइट, तो दोनों का NTP बोला है, तो दोनों का प्रेशर भी सेम था, तो P और P, राइट। आगे दो आइडेंटिकल बल्ब बोले हैं, मतलब वॉल्यूम भी सेम, करेक्ट। NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर इज 273 केल्विन, करेक्ट। N1 डैश 1.5 P, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि कनेक्ट करने के बाद और एक को आइस में दूसरे को हॉट बाथ में रखने के बाद the pressure becomes 1.5 times of P, so you will have 1.5 P, volume remains same, volume क्या change हुआ? No, it remains same. Temperature of ice 0 डिग्री, मतलब वापस से 273 plus 1.5 times of PV अपॉन RT, ये T फाइंड करना है, ये T है हॉट बाथ का। दो बल्ब में से पहला टर्म पहले बल्ब का बिफोर कनेक्टिंग, बिफोर कीपिंग इन आइस, ये इस दिस टर्म इज फर्स्ट बल्ब आफ्टर कीपिंग आइस, राइट। दूसरा टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ऑफ सेकंड बल्ब बिफोर कीपिंग इन हॉट बाथ, दूसरा टर्म राइट हैंड साइड पे ऑफ हॉट बाथ आफ्टर कीपिंग दैट इन हॉट बाथ, राइट। तो यहाँ पे PV by R कॉमन निकल के कैंसल आउट, PV by R, PV by R सब टर्म्स में है, तो PV by R कैंसल, 1/273 प्लस 1/273 2/273 इक्वल टू, यहां से भी आपने PV by R हटा दिया तो 1.5 अपॉन 273 प्लस 1.5 बाय T फाइंड करना है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2/273 और ये टर्म माइनस 1.5 बाय 273 इक्वल टू 1.5 बाय T, ये T है टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ जो आपको फाइंड करना है, तो यू हैव 1.5, तो 2 minus 1.5 is 0.5 upon 273 equal to 1.5 by T, 1s and 3s, तो T is equal to 273 into 3, इजी है, कैसे फाइंड करते हो? 250 into 3 750, बचा 23 ऊपर का into 3 69, 750 plus 69 819 केल्विन। अच्छा अभी देखो केल्विन में तो नहीं है लेकिन डिग्री सेल्सियस में है, अब -273 करोगे किसमें से? 819 में से, तो 500 के तो ऊपर ही जाएगा। If you subtract 273 to go into degree Celsius, this is greater than 500 only. एक ही ऑप्शन है, बात खत्म, ऑप्शन नंबर डी, बाकी ऑप्शन में है ही नहीं 500 के ऊपर, तो यू हैव 546 डिग्री सेल्सियस। ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, two containers of equal volume contain the same gas at pressure P1 and P2 and absolute temperature T1 and T2। आपके पास दो कंटेनर है जिसमें इक्वल वॉल्यूम है but pressures are different and temperatures are different. On joining the vessels, the gas reaches a common pressure P and a common temperature T। मतलब इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, सेम यहां पे भी वही बोला है, दो कंटेनर इक्वल वॉल्यूम, प्रेशर डिफरेंट, टेम्परेचर डिफरेंट, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो वो कॉमन प्रेशर पे आ गया, राइट, P, और कॉमन टेम्परेचर पे T, तो वापस से वही इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर 1 प्लस
initial number of moles in container 2, n2, n1 plus n2 equal to final, मतलब n final, दोनों को ज्वाइन करने के बाद, कंबाइन करने के बाद, you just saw this is nothing but p v by r t. तो p1 v1, but v1 is equal to v2, बोला है सेम वॉल्यूम, बोला क्या इक्वल वॉल्यूम, राइट, अपॉन r t1 प्लस p2 v2 upon r t2. This is p final v final upon r t final. So now what you can do in the next step is, ऐसा है, दोनों कंटेनर को कंबाइन करने के बाद what will be the total volume, v1 plus v2, but what is v1 and v2 equal, and they are v1 is v, v2 is v, मतलब 2v है ना. फाइनल प्रेशर क्या बोला आपको, p, फाइनल टेम्परेचर क्या बोला आपको, t, करेक्ट. देन यहां पे v बाय r, यहां पे v बाय r, यहां पे v बाय r कैंसल, तो p1 बाय t1 प्लस p2 बाय t2 इक्वल टू, यहां बचेगा आपके पास p2p बाय t, करेक्ट, क्योंकि आपने v बाय r कैंसिल किया है. तो व्हाट विल बी p बाय t क्या होगा, सीधे 2 को क्या करोगे, यहां पे लाके डिवाइड करोगे, तो यहाँ 2 और यहाँ पे 2, तो p बाय t का रेशियो क्या है, p1 अपॉन 2t1 प्लस p2 बाय 2t2, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट, गुड. So this is how you are supposed to solve this question. Next question. Let A and B be the two gases and given TA by MA equal to 4 times of TB by MB, where T is temperature and M is molecular mass. If CA and CB are RMS speed, then the ratio of CA by CB will be, आपको पता होना चाहिए RMS velocity of gas is, CRMS is equal to under root of 3RT by M, where M is molecular weight. Okay, good. Then 3 और R कांस्टेंट है, मतलब C RMS is proportional to root of T by M, मतलब CA by CB is equal to under root of क्या था, T by M, तो आप लिख पाओगे यहाँ पे TA by TB by, ये आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो MA by MP, करेक्ट. बट TA by MA, so what I'll do is, इसको ऐसे लिखता हूँ, ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको TA by MA दिया है. What is TA by MA given to you, equal to under root of, what is TA by MA, 4 times of TB by MB, and this is already MB by TB, cancel 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 cancel, तो ये आ गया आपका root of 4 is 2, मिल गया रेशो. सिर्फ CRMS पता होना चाहिए था, 2 है क्या, 2, ऑप्शन नंबर ए, correct. So this is how you're supposed to solve. Next question. The root mean square speed of hydrogen molecules at 300 is 1930 meter per second. Then the root mean square speed of oxygen molecules at 900 Kelvin will be. अभी आपने देखा CRMS is proportional to root of T by molecular weight, right? आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का RMS स्पीड निकालना है, मतलब C, एंड बाय द वे याद रखना, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, दे आर मॉलिक्यूलर गैसेस, O2, और ये H2, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ
TO2 by TH2, and here you will have MO2 और ऊपर आएगा MH2, correct? TO2, temperature of oxygen is 900, that of 300. MH2, molecular weight of hydrogen is 2, oxygen is 32. How do you find molecular weight? Basically it is number of protons. एक एटम में 16 ऑक्सीजन के लिए. ऑक्सीजन इज डायएटॉमिक. 16 plus 16 32. 1 जा 3 जा 1 जा 16 जा, तो ये आ गया आपके पास CO2 इक्वल टू √3/4, 16 का √4, और ये CH2 √3/4. and what is CH2? 1930. मैं रफली बताता हूं, इसको 2000 मान लो. 1930 को 1 and 2000 था तो 500 और √3 is 1.732, राइट? करेक्ट. तो ये आ जाएगा आपका, रफली बता रहा हूं मैं, रफली बता रहा हूं. दिस इज नथिंग बट ये 2 सरकत होगी उधर, राइट? तो 5 into 173, 173 का हाफ 850 और ऊपर के 15, 800 something is here, roughly approximately. Okay, so this is how you are supposed to solve. Question easy था, calculations आपको सीखने हैं of course. अगला क्वेश्चन, at what temperature is the root mean square velocity of gaseous hydrogen molecule is equal to that of oxygen molecules at 47? At what temperature RMS velocity of hydrogen is equal to RMS of oxygen, which is at 47? So RMS of hydrogen should be equal to RMS of oxygen. ऐसे आपको बोला है. What is RMS? अभी आपने देखा, under root of 3RT hydrogen upon molecular weight of hydrogen equal to root of 3RT oxygen upon molecular weight of oxygen. Cancel. Correct. So squaring on both sides, TH2 upon MH2 equal to TO2 upon MO2. So you will have TH2 equal to TO2 upon MO2 into MH2. What is TO2? 47 degrees. 47 degrees in Kelvin. 320. And this is 32. This is 2. 1 za, 10 za, that is 20 Kelvin. Option A. Good question. Simple and good. Agla question. This is joke. The speeds of 5 molecules of a gas are as follows: 2, 3, 4, 5, 6. Root mean square speed. Definition पता होना चाहिए RMS का. If you remember, root किसका root? मीन स्क्वायर का. मतलब पहले तो स्पीड्स का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन करो, फिर उसका रूट लो, तो रूट मीन स्क्वायर. ओके, तो ये क्या है? कुछ नहीं है. 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बाय 5 का रूट. 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16 29, 29 प्लस 25 54, 54 प्लस 36 90, 90 by 5 18 is 3, 18 is 9 into 2, मतलब 3 root 2. So this is 3 root 2. 3 root 2. Root 2 is 1.4. 1.4 into 3 is 4.2. 4.2 option number D. खत्म क्वेश्चन.
डन। वैसे रूट 18 देख के समझ में आना चाहिए था, बिटवीन 4 and 5। 16 का रूट 4, 25 का 5, 18 is between 16 and 25, so root will be between 4 and 5. There's only one number between 4 and 5. Done. 4.24. Good. अगला क्वेश्चन, gas at a pressure P0 is contained in a vessel if masses of all the molecules are half, masses of all the molecules are half and their speeds are doubled, resulting pressure will be। इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रेशर का इक्वेशन पता होना चाहिए। प्रेशर exerted by gas is given by 1/3 rho CRMS square, where rho is density of the gas, 1/3 density is mass per unit volume CRMS। लेकिन गैस में you have n number of molecules, each of capital N number of molecules, each of mass small n, तो total mass कितना आएगा, mass of each multiplied by number of molecules। टोटल मास कैसे निकालते हो, मैंने बोल दिया अभी 4 लोग बैठे हो आप यहाँ पे, हर एक का 100 kg मास है, अज्यूम टोटल नंबर इनटू 100 मतलब टोटल 400, तो वैसे ही ऐसा है यहाँ पे भी ऐसा ही आपको मिलेगा। So you will have here also like this, you will have over here, this will be 1/3 total number of molecules into mass of each molecule, volume CRMS का square, this is pressure। ओके, तो हियर आपको क्या पूछा है, आपको बोला है कि मास को हाफ किया और वेलोसिटी को डबल किया, मतलब मास और वेलोसिटी, राइट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज किया क्या, नहीं। वॉल्यूम चेंज किया, नहीं। 3 तो वैसे भी कांस्टेंट था, मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू CRMS स्क्वायर, मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ पे P2 by P1 इक्वल टू M2 by M1 C2 by C1 स्क्वायर। बट वेट अ मिनट, आपको बोला है मास को आपने हाफ किया और स्पीड को आपने डबल किया, तो M2 by M1 is half and C2 by C1 is 2। Substitute, therefore P2 by P1 is equal to M2 by M1 is how much, half, C2 by C1 is how much, 2, उसका भी स्क्वायर, तो 4/2 is 2, तो फाइनल प्रेशर is 2 times of initial pressure, that is 2 times of P0, so 2 times of P0। सिंपल, राइट। तो हमेशा क्या पूछा है, क्या दिया है, उसका ही रिलेशन बनाना है, दैट्स ऑल, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a box containing n molecules of a perfect gas at temperature T1, pressure P1। You have a box which contains n molecules at pressure P1, temperature T1। The number of molecules is doubled, keeping the total kinetic energy of the gas same as before। Number double कर दिया, energy same है। Interesting, E1 equal to T2। If the new pressure is P2, temperature T2, then what is the relation between pressure and temperature? Option B, because we have done this earlier also, but anyways, how to solve? Treating this gas as monoatomic gas, yes, but you are right, but energy find करते वक्त energy depends on degrees of freedom, which depends on which type of gas you are having। इसको आप मोनोएटॉमिक मानो, इसको आप डायटोमिक मानो, इसको आप नॉन रिजिड डायटोमिक मानो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं, मैं मान लेता हूं अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो E विल बी इक्वल टू 3/2 kT, हर एक मॉलिक्यूल का इनटू n मॉलिक्यूल्स है, राइट। तो E1 विल बी, so you will have E1 here, you will get E1 will be 3/2 K T1 N1
3/2k T2 N2 cancel, so you will have N1 T1 equal to N2 T2. ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NT इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपके ऐसा है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, फिर आप बोलते हो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, M1 T1 इक्वल टू M2 T2 आप बोलते हो MT कॉन्स्टेंट। तो N1 T1 इक्वल टू N2 T2 मतलब N इंटू T कॉन्स्टेंट, वो बाद में यूज करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने क्या किया, डबल किया, बोला है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल्ड, तो N2 is 2 times of N1, कैंसल, तो T2 is equal to T1 by 2, मतलब टेम्परेचर तो हाफ होने ही वाला है, मतलब ऑप्शन ए और सी तो अभी होंगे नहीं, बी और डी में से एक। प्रेशर एंटी कांस्टेंट, बट यू नो पीवी इज इक्वल टू एनकेटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी से ये बनता है एनकेटी। यू नो हाउ दिस कम्स, शुड नो, पता होना चाहिए। PV is equal to number of moles RT. Number of moles is number of molecules upon Avogadro number RT. But R by Avogadro number is K. So you will have PV equal to NKT. But wait a minute, K तो constant है, NT भी constant है, इसका मतलब PV भी constant है। अगर PV constant है तो इसका मतलब ये होता है, एंड बाय द वे मैं ऐसा भी क्यों लिखूं, आई विल नॉट राइट डाउन दिस ऑल्सो, मैं बोलूंगा तू भी यहाँ पे आ जा, वॉल्यूम को भी यहाँ भेज देते हैं। डिड दे से वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट, राइट, बोला है ना। देखो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल्ड कीपिंग टोटल एनर्जी, ओके। अभी आपको यहाँ पे ऐसा कहीं बोला है क्या वॉल्यूम बढ़ाया, गैस का साइज, बॉक्स का साइज डबल किया, नहीं, मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट मतलब P1 इक्वल टू P2, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रेशर कांस्टेंट इंप्लाइज इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर आर द सेम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर on increasing the pressure of a gas by 5% at constant temperature, on increasing the pressure of gas by 5% will decrease its volume by, पहले तो constant temperature है, आपको पता है constant temperature पे P is inversely proportional to V। by the way क्या चेंज किया आपने, प्रेशर, फाइनल प्रेशर विल बी इक्वल टू इनिशियल प्लस 5% ऑफ इनिशियल। अभी मैं बता रहा हूं बट आई डोंट वांट यू टू डू दिस। 5% इज 5/100 P1, दिस इज P1 प्लस 0.05 P1, तो P2 विल बी इक्वल टू 1.05 टाइम्स ऑफ P1। 5% is not 1.5, it is 1.05, 10% is 1.1, 15 is 1.15, 20 is 1.2, तो पता होना चाहिए। आ गया। Now from here I can have P1 by P2, 1 upon 1.05 मतलब 100 upon 105, क्यों, ऑफ कोर्स दिस इज 105/100। इसके लिए वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ ये पूछा है, मतलब आपको परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछा है। V2 minus V1/V1 into 100, that is percentage decrease. So V2 by V1 minus V1/V1 is 1 into 100. But what is V2 by V1? Yes, you know, as you know, V2 by V1 is P1 by P2. Q, because inversely proportional. Look here, right? So what is P1 by P2? 100 upon 105 minus 1 into
100, correct? So this is 100 minus 105 upon 105 into 100. This is minus 5 by 105 into 100. This is 20, this is 20, 1. This is minus 100 by 21. Minus 100 by 21 is roughly 4.7 something something. 4.7 something something. Option number D. Minus 4.76%. Minus indicates that the volume is decreasing. ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hydrogen gas is filled in a balloon at 20 degrees Celsius. If temperature is made 40 degrees, pressure remaining the same, what fraction of hydrogen will come out? आपके पास एक बलून है जिसमें हाइड्रोजन 20 डिग्री पे है, उसको आपने 40 किया, प्रेशर सेम है. What fraction of hydrogen will come out? How to solve this question? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर बीइंग कांस्टेंट. चार्ल्स लॉ इफ यू रिमेंबर. करेक्ट. गुड. आपको पूछा है व्हाट फ्रैक्शन विल कम आउट, मतलब यू आर आस्क्ड व्हाट इज V2 minus V1 by V1, but V is proportional to T, so that is T2 minus T1 by T1, fraction percentage में, right, which is T2 by T1 minus 1. T2 कितना 40, 40 plus 273, 313. 20 is 293 minus 1. This is equal to 313 minus 293 upon 313. That is 20 by 293 नीचे, sorry. In the denominator you have 293. यहाँ पे 293 है आपके पास. 20 by 300. 20 by 300 is how much? Arey baba, 20 by 300 is 1 by 15. This is roughly 20 by 300. 1s are 15s are. Sure. Pakka. Good. 1 by 15. 1 by 15 को मैं ऐसा सॉल्व करता हूं. मैं बोलूंगा चलो कोई बात नहीं, मैंने 1 को 100 लिख दिया, फिर 10 पावर माइनस 2 एडजस्ट करना पड़ेगा, 15, 15 1 जा 15, 7 जा 105. हाँ, तो 0.07, ऑप्शन ए. This is how you are supposed to solve this question. Next question. The capacity of vessel is 3 liter. मतलब volume is 3 liter, 3 into 10 power minus 3 meter cube. It contains 6 gram oxygen, 8 gram nitrogen, 5 gram carbon dioxide mixture at 27 degree. If R is 8.31, then the pressure in the vessel in Newton per meter square approximately will be. You should know what is Dalton's law. Total pressure exerted by gas is sum of partial pressures. Pressure exerted by gas 1 plus gas 2 plus gas 3, चौथा होगा तो gas 4, gas 5, gas 6, so on so forth. But pressure nRT by V, N1 RT by V. मैंने T1 V1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सबका टेम्परेचर 27 है एंड सभी एक ही कंटेनर में है, तो सबका वॉल्यूम भी सेम है. प्लस N2 RT by V प्लस N3 RT by V
तो ये आएगा आपके पास RT/V N1 प्लस N2 प्लस N3. ओके, तो हाउ डू यू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स? मास अपॉन molecular weight, mass in grams upon molecular weight. So you will be having R is 8.31 into temperature 27 is 300 Kelvin, volume is 3 into 10 power minus 3. This is M1 by मतलब of course oxygen plus M2 by nitrogen was second and तीसरा was carbon dioxide. So you will need this. Okay, so mass of oxygen 6 ग्राम, molecular weight is 32, mass of nitrogen is 8, molecular weight is 28. N2 एक N का 14 तो N2 is 28 प्लस 5/44. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 16, 12 प्लस 16 प्लस 16 44. So this is 1 and this is 100. तो ये ऊपर जाके प्लस होगा, तो 8.31 into 10 पावर 5. इसको सॉल्व करो. अब यू हैव नो अदर अल्टरनेटिव. एक काम करो, 4 4 4 कॉमन, 6/8 प्लस 8/7 प्लस 5/11. मैं आपको ओरली बता देता हूँ, अच्छा होगा ओरली. तो यू विल हैव फास्ट हो जाएगा आपका आंसर, तो डोंट वरी. 6/8 is 3/4, 3/4 is 0.75, 0.75, 8/7 is roughly 1, 0.75 plus 1, 1.75, 5/11 is 5/10, that is half, that is 0.5. 6/8 0.75, 8/7 roughly 1, 1 plus 0.75 is 1.75, 5/11 मतलब 5/10 मतलब half मतलब 0.5, 1.75 plus 0.5 is 2.25. 2.25, wait, 2.25, ये roughly 1 जा, ये roughly 2 जा, 2 into 2.5 roughly 5 into 10 power 5. वो option number A, right? This is how you are supposed to solve this question. Easy calculations you have to make easy. अगला question. Two gases occupy two containers A and B. Okay, the gas in A has volume 0.1 meter cube, pressure 1.4 megapascal. In B, 0.15 meter cube volume and pressure 0.7 megapascal. The two containers are now united by a tube of negligible volume and the gases are allowed to mix, intermingle. Then the temperature remains constant. Then if the temperature remains constant, तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया. PV equal to constant, right? P is inversely proportional to V. Temperature constant मतलब P initial, V initial equal to P final, V final. नहीं तो 3-4 स्टेप बढ़ जाते हैं. ठीक है, वैसा भी कर सकते हो. Initial pressure was pressure in A, volume in A plus pressure in B, volume in B. This is initial. Final pressure PF and BF. तो यहां से आपको मिल जाएगा PF इक्वल टू PAVA प्लस PBVB अपॉन फाइनल वॉल्यूम विल बी VA प्लस VB. क्योंकि दोनों को कनेक्ट कर दिया तो फाइनल वॉल्यूम विल बी VA प्लस VB. What is PA? 1.4 megapascal. And by the way, आंसर मेगापास्कल में है, तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ मेगापास्कल. मैं यहाँ पे प्रेशर को 1.4 into 10 power 6 नहीं लिखने वाला हूँ. तो प्रेशर इन A is 1.4, वॉल्यूम is 0.1 प्लस प्रेशर इन B
What is pressure in B? 0.7. Volume is 0.15 upon 0.1 plus 0.15. 1.4 into 0.1. 0.14 plus 15 7 105. इसका 10 पावर -1, इसका 10 पावर -2 -3, मतलब 105 10 पावर -3 मतलब 0.105 upon 0.25. This is 0.145 upon 0.25. नहीं 0.245. ओके, थैंक यू. तो ये आ जाएगा आपके पास 245 upon 25, 10 power -3 upon 10 power -2. 25 10 is how much? 250. ये 1 जा, ये 0.98 जा होता है. करेक्ट? हाँ, वेरी गुड. Good. You are paying attention. Very good. 250 by 25 is 10. So 245 by 25 is slightly less than 10. और ये आपका 10 पावर -1 बचेगा, इसलिए 0.98 या 0.97 ऐसा कुछ आंसर मिलना चाहिए. 0.9. ऑप्शन बी करेक्ट. गुड, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Joke. Energy of all the molecules of monatomic gas having volume V pressure P is 3/2 PV. By the way, how many degrees of freedom does a monoatomic gas have? 3. कौन से? नहीं है, कैसे क्या रोटेशनल? ट्रांसलेशन 3. ओके, गुड. आगे the total translational kinetic energy of all the molecules of diatomic gas of the same volume and pressure is. Wait a minute, that is where you go wrong. Diatomic gas has 5 degree of freedom if it is rigid, 3 ट्रांसलेशन से और 2 रोटेशन से. पूछा क्या है? टोटल ट्रांसलेशनल 3/2. रोटेशन पूछा है क्या? हाँ, तो फिर क्यों बोल रहे हो सर 5/2? राइट. So that is why I told you once, jokes in physics are hard to understand. So this is joke. Next question. Very good. अगला क्वेश्चन अच्छा है. Carbon dioxide is a triatomic gas. Mean kinetic energy of 1 gram will be. देखो, the thing is, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्राइएटॉमिक गैस कैन बी नॉन लीनियर अल्सो. तो ये है आपके पास कार्बन का एटम. देन यू हैव 2 ऑक्सीजन के एटम. वन इज हियर, अदर इज हियर. इट इज लीनियर. यू मे ऑल्सो हैव non-linear like H2O, where 2O2, they are, these two are something like this. ये ऐसा होता है. यहां पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं. कैसे 3? एक रोटेशन ऐसा. Correct? Then this was one rotation. अगला रोटेशन about this axis. नीचे के दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फ्लिप होंगे. तीसरा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर आएगा, एक अंदर जाएगा. 3. तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर में 3, ट्राइएटॉमिक में. हियर यू हैव वन, दिस वन. ओके, एक ऑक्सीजन इज कमिंग आउट एंड अदर इज गोइंग इन.
तीसरा जो है वो अबाउट दिस एक्सिस इटसेल्फ, लेकिन एनर्जी तब स्पेंड होती है जब रेजिस्टेंस हो, मतलब यहां पे उसको आप बोलते हो इनर्शिया, और यहाँ पे रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, मतलब रोटेशनल मोमेंट इज गिवन बाय r mr स्क्वायर, where r is distance from axis of rotation. जब खुद एटम्स एक्सिस पे बैठे हैं तो देयर इज नो इनर्शिया, इफ नो इनर्शिया नो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब इनर्शिया ही नहीं है तो एनर्जी विल नॉट बी स्पेंड इन रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट देयर इज नो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यू कैन से। तो 3 ट्रांसलेशन के और 2 रोटेशन के, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने, 5। वाइब्रेशन कौन लेगा, कितने वाइब्रेशन के, 2। 1 comes from kinetic energy of vibration, other comes from potential energy of vibration, तो टोटल आ गया आपके 7, 3 + 2 + 2 7। हर एक वाइब्रेशन के साथ, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना एनर्जी, हाफ kT, हर एक के साथ। यहां पे कितने हैं, 7, मैं बोल देता हूं S। ओके गुड। अगर मेरे पास n मोल्स होते, n मोल्स ऑफ गैस होते, तो आई वुड हैव रिटन दिस एज multiplied by n, but number of moles is mass upon molecular weight, FKT। mass is 1 gram, बोला क्या 1 gram, 1 gram, molecular weight 44.7 kT, कितना आ गया, 7/44, करेक्ट। और 2 कौन लिखेगा, 2, मतलब 7/88 kT, ऑप्शन नंबर डी। वेयर इज दिस n गॉन, यहाँ पे ना 7/88 NKT, n किधर है, कहाँ है, नहीं ऐसे कैसा है, फिर वो अलग से क्यों लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बोला क्या n इज एवोगैड्रो नंबर, वेयर इज n, वेयर इज एवोगैड्रो नंबर, आई डोंट सी। ओके तो आंसर तो डी है, थिंक अबाउट इट, वेयर इज n, think about it, okay? So that's it for KTJ. So I'll stop here for today.